Hello everyone, my name is Ujjwal Kumar. I am from Baba Automobile Private Limited from Jaipur Center. Okay, so today we will discuss about Activa, Honda Activa engine 125cc. So you know about Honda Activa engine. In this engine we are use the CVT process. So what is the CVT? Continuous variable transmission. So we will discuss about CVT process and how to work the Honda Activa engine without clutch, without gear, how to work the scooty engine. Everyone might have doubt how to work the scooty engine without clutch, without gear. So we will discuss about CVT process on Activa engine. Okay, so let's start. ओके एवरीवन, सो सबसे पहले क्या करते हैं, ये स्कूटी का इंजन होंडा एक्टिवा 125cc. ओके, सो फर्स्ट डिसअसेंबल द एवरी पार्ट्स एंड एक्सप्लेन वन बाय वन. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको स्कूटी के इंजन के बारे में बता दूँ. सबसे पहले सेम एज लाइक बाइक के इंजन, सिलेंडर हेड, देन सिलेंडर ब्लॉक, क्रैंकेस. ओके, क्रैंकेस दो पार्ट में, राइट हैंड क्रैंकेस एंड लेफ्ट हैंड क्रैंकेस. इस प्रोसेस इसके अंदर ही हम लोग इंजन वेरिएटर एंड क्लच वेरिएटर का यूज करते हैं. तो इसके अंदर जो सीवीटी प्रोसेस होता है ना, वो आप देख पाओगे. तो कैसे होता है वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिसअसेंबल करते हैं, और डिसअसेंबल करने के बाद एक वन बाय वन एक एक पार्ट को लेके और ब्रीफली उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो फर्स्टली डिसअसेंबल द पार्ट. ओके, तो आप देख सकते हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड टैपिड कवर. ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड टैपिड कवर. यू कैन सी द कवर seal made up by rubber. Okay, so this one is the tappet cover seal. Okay, on tappet cover we are use the valve for blow by gases. You know about blow by gases, I will explain after some time. Okay, what is the blow by gases? Okay, so you can see this part is called top of the cylinder and this is the cylinder head part. Okay, this one is the camshaft, this one is the camshaft. Okay, on camshaft this is the cam profile. This is the rocker arm. You can see the inlet wall rocker arm and outlet wall rocker arm. On rocker arm back side of the use the follower. Okay, follower for follow the cam profile and cam lobes. Here we connect the cam sprocket. Here we connect the cam sprocket for move the camshaft. Okay, so this one is the part of the cylinder head. You can see this is the wall. Two walls are available here. Okay, one is the inlet wall and another is the outlet wall. And this one is the timing chain and cam sprocket. This is the cam sprocket. You can see the marking of the on cam sprocket. This one for set the timing. This one for set the timing. Okay. So firstly we disassemble the carburetor and air filter part.
ओके। Okay, so you can see this part. This one is the inlet manifold. This is the carburetor, and also this whole part is called air filter. When air is come to the atmosphere and come to the after the filtration, it will come to the carburetor, and in carburetor we will mix the with fuel, air mixed with fuel, and come to the inlet manifold, and after that inlet manifold come to the chamber. Okay, so this part is called carburetor, inlet manifold and air filter. Okay, you can see. So firstly disassemble the cover of the cylinder block, ducting cover of the cylinder block. Okay, so what is the use of cover, why we are use the cover, I will explain. ओके, सो ये कवर निकाल चुका है, आप देख सकते हो कवर निकल चुका है। ठीक है, ये डक्टिंग कवर होता है किसके लिए, सिलेंडर ब्लॉक के लिए। अभी देखो यहाँ पे बताया जाएगा इसका कि क्या यूजेज है अभी। सो आप देख सकते हो सिलेंडर ब्लॉक, ये सिलेंडर ब्लॉक है। ठीक है, अभी सिलेंडर हेड के पार्ट को निकालते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो ये सिलेंडर हेड है, ये सिलेंडर हेड, इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, कैमशाफ्ट असेंबली टोटल। यहाँ से टाइमिंग चैन क्रैंकशाफ्ट से आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस पार्ट को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। आप देख सकते हैं इस वॉल्यूम को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। जो ब्लास्ट होता है ना वो इसके यहीं पे होता है, ब्लास्ट इसी एरिया में होता है, इसलिए इसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। अब इसके अंदर आप दो वॉल्व दिख रहे होंगे आपको, आप देख सकते हैं इसके अंदर दो वॉल्व दिख रहे होंगे। ठीक है, एक लार्जर डायमीटर का है, एक स्मॉलर डायमीटर का है। जो लार्जर डायमीटर का है उसको बोलते हैं इनलेट वॉल्व, जो स्मॉलर डायमीटर का है उसको बोलते हैं आउटलेट वॉल्व। और यहाँ पे एक और होल दिख रहा है जिसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ है। तो जो क्लियरेंस वॉल्यूम है इसमें दो चीज़, एक इनलेट वॉल्व, एक आउटलेट वॉल्व और एक स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है, और इसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होल है इसके लिए टाइमिंग चेन को ऊपर जाने के लिए रास्ता होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनटेक मैनिफोल्ड जो होता है, इनलेट मैनिफोल्ड, वो यहाँ पे कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू यहाँ से कार्बोरेटर से एयर फ्यूल का मिक्सर आता है जो इनलेट मैनिफोल्ड से चैम्बर में आता है, और यहाँ पे आउटलेट वॉल्व ओपन होते ही यहाँ जो एयर फ्यूल का मिक्सर होता है, जो ब्लास्ट जो गैसेज होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। सो यू कैन सी व्हाट इज दिस, दिस वन यूज फॉर एक्स्ट्रा एयर प्रोवाइड on exhaust side. Okay, extra air provide on exhaust side. Why we are provide the extra air on exhaust side? So I will explain on time. Okay, so this whole part is called cylinder head. On cylinder head you can see the fins. आप फिन्स देख सकते हो यहाँ पे, ये आप लोगों को फिन्स दिखाई दे रहा है। अब ये फिन्स का क्या यूजेज है, तो फिन्स आपको सबको पता है, हीट ट्रांसफ़र में आपको पढ़ाया गया होगा कि फिन्स का यूज़ करते हैं हीट ट्रांसफ़र के, हीट को डिसिपेट करने के लिए, क्योंकि क्या करते हैं, एरिया बढ़ाने के लिए। ठीक है ना,
यहाँ पे जो फिन्स का यूज़ किया गया है वो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हैं। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो एयर ज़्यादा से ज़्यादा टच कर पाएगी, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा एयर टच कर पाएगी उतना ज़्यादा हीट का डिसिपेशन होगा। इसकी वजह से हम लोग फिन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। मोर हीट डिसिपेशन, वी आर यूज द फिन्स फॉर मोर हीट डिसिपेशन, ओके, बिकॉज दिस वन इज द एयर कूल्ड इंजन, ओके। सो आई थिंक कंप्लीट द हेड पार्ट्स, ओके। अब आते हैं अपन, अनदर पार्ट इज कॉल्ड ब्लॉक। सो ब्लॉक को देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये इसको बोलते हैं गाइडर। दिस पार्ट इज कॉल्ड गाइडर। वाई वी आर यूज द गाइडर? वी आर यूज द गाइडर फॉर डू नॉट टच द टाइमिंग चेन विथ बॉडी, ओके। सो वी आर यूज द गाइडर। सो गाइडर इज गाइड द टाइमिंग चेन. Guider is guide the timing chain. We have two guider is used. One is right side of the timing chain and another is left side of the timing chain. Okay. This part is called stud. This part is called stud. Okay. You can see the cylinder block. This part is called cylinder block. On cylinder block also fins is available. On cylinder block also fins is available, okay, for heat dissipation, for more heat dissipation, okay. ये आप देख सकते हो पिस्टन जो है ना वो इस वॉल्यूम के अंदर ही मूव करता है। तो इस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? इस वॉल्यूम को क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस वॉल्यूम को क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसको क्लियरेंस वॉल्यूम, सॉरी एवरीवन, सॉरी, इस वॉल्यूम को बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम और इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, ओके। इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम और इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो आपसे पूछा जाता है ना कि क्या होता है कंप्रेशन रेशियो, क्या होता है कंप्रेशन रेशियो? कंप्रेशन रेशियो आपसे पूछा जाता है। तो कंप्रेशन रेशियो कहता है टोटल रेशियो डिवाइडेड बाई क्लियरेंस, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई clearance volume, that is called compression ratio, okay. total volume divided by clearance volume, that is called compression ratio. आप देख सकते हैं यहाँ से टाइमिंग चेन का रास्ता है, इसमें भी सिलेंडर हेड में भी। अब ये टाइमिंग चेन के रास्ते में ये क्या है, आप अब लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्या है, इसको बोलते हैं टेंशनर। Okay, you can see this one is the tensioner for tight the timing chain. Tensioner we are used for tight the timing chain inside the path of the timing chain. You can see. Okay, so tensioner we are used for tight the timing chain. Tensioner directly do not touch the chain. Tensioner tight the guider. Tensioner tight the guider and guider directly touch the timing chain. Okay, so everyone, I hope everyone have understood about cylinder block. Okay, so इसको क्या बोलते हैं? TDC, टॉप डेड सेंटर, बिकॉज पिस्टन जो टॉप यहाँ तक लास्ट आता है इसको बोलते हैं TDC, टॉप डेड सेंटर। और बॉटम डेड सेंटर किसको बोलेंगे? जो पिस्टन का सबसे टॉप होता है, मीन्स इसको नहीं बोलेंगे BDC, लास्ट को नहीं बोलेंगे BDC। जो पिस्टन इसके अंदर होगा और पिस्टन का जो टॉप साइड होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे होगा, तो इसको बोलेंगे BDC, बॉटम डेड सेंटर। मीन्स ट्रैवल डिस्टेंस, लास्ट ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ पिस्टन, दैट इज कॉल्ड BDC, बॉटम डेड सेंटर, ओके। और सिलेंडर हेड का मटेरियल क्या होगा? तो एल्यूमिनियम अलॉय, ताकि एल्युमिनियम, अगर सिर्फ एल्युमिनियम के यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये मेल्ट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए एलॉय का यूज़ करते हैं, मिक्स करते हैं, ताकि एक तो लाइट वेट हो और दूसरा क्या हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, ओके। सिलेंडर ब्लॉक है इसके कास्ट आयरन में भी मिक्स करते हैं, ओके। तो कास्ट आयरन का, ताकि क्योंकि क्या होता है, जो ब्लास्ट यहाँ पे होता है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये पार्ट, इसलिए हम लोग कास्ट आयरन से इसको बनाते हैं। तो आई होप कि सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के एवरी पार्ट्स और एवरी उसकी वर्किंग पार्ट्स और उनकी वर्किंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
सो आगे चलते हैं अपन सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बाद अपने स्कूटी के इंजन पे देख सकते हैं कि ये अभी स्कूटी का इंजन है जिसमें ये ऑल्टरनेटर साइड होता है और इसको बोलते हैं CVT बेस्ड प्रोसेस। इसको क्लच साइड बोल सकते हो, इंजन वेरिएटर साइड बोल सकते हैं, और ये होता है अपना गियर बॉक्स। ओके, और यहाँ पे अपना पिस्टन देख सकते हो आप लोग, ये रहा पिस्टन। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटर साइड खोलते हैं, ऑल्टरनेटर के बारे में बात करते हैं, फिर 1 बाय 1 एक एक पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करना चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिसअसेंबल करते हैं ऑल्टरनेटर कवर। ओके, आप देख सकते हो ये ऑल्टरनेटर कवर। यहाँ पे क्या फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन के लिए यहाँ पे ये स्पेस दिया गया है, ये फ़ैन के लिए। अब ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फ़ैन क्यों, बाइक में तो हम लोग फ़ैन का यूज़ नहीं करते थे, बट ये स्कूटी में फ़ैन का यूज़ क्यों। ठीक है, तो आपको पता होगा कि बाइक जो होता है वो उसका इंजन क्या होता है, खुला होता है, बिल्कुल जो खुला होता है। नॉर्मल बाइक्स जो देखोगे आप 100 cc 150 cc बाइक, वो क्या बिल्कुल डायरेक्टली उससे एयर डायरेक्ट जाके टच होती है, एटमॉस्फेरिक एयर जाके डायरेक्ट टच होती है, जिसकी वजह से क्या होता है एयर कूल कर पाते हैं। बट स्कूटी की इंजन क्या होती है, स्कूटी के इंजन पैक्ड होता है बिल्कुल, और इंजन नीचे के साइड होती है, तो पैक होने की वजह से उसमें एयर डायरेक्टली टच नहीं होती, इसलिए हम लोग क्या करते हैं फ़ैन का यूज़ करते हैं। मीन्स आपको इजी वे में, टेक्निकल वे में बताया तो फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन आपने पढ़ा होगा। तो जो नॉर्मल बाइक्स वगैरह इंजन यूज़ करते हैं उसमें हम लोग क्या फ्री कन्वेक्शन होता है, जो नेचुरल एयर जो होती है वो डायरेक्टली टच होती है इंजन से, जिसकी वजह से कन्वेक्शन प्रोसेस होता है और हीट का डिसिपेशन होता है। बट स्कूटी क्या होती है, पैक्ड होती है, इसमें एयर डायरेक्टली टच नहीं हो पाती इंजन से, इसकी वजह से हम लोग फोर्स्ड कन्वेक्शन करते हैं। फोर्स्ड कन्वेक्शन मीन्स क्या होता है कि हम फैन का यूज करके एयर को सक करके बाहर से एटमॉस्फेयर से, और उसको क्या करते हैं स्ट्राइक कराते हैं, किस पे, सिलेंडर ब्लॉक पे। अब ये एयर को सक कहाँ से करता है, तो आप कवर देख सकते हो, यहाँ से जब हम कवर को पैक करेंगे तो एयर यहाँ से सक होगा, यहाँ से सक होगा, ये इस फिन यहाँ पे देख सकते हो फैन के इस पार्ट से एयर जाएगा और इसको इस पार्ट से आउट होगा, और ये पार्ट से आउट होके कहाँ जाएगा ये फैन, तो आपको बताया था यहाँ पे डक्टिंग बताया था, जो कि अपन कवर यूज़ करते हैं सिलेंडर ब्लॉक का, जो कि एज लाइक वर्क करता है डक्टिंग। ये देख सकते हो आप, ये कवर ऐसे रहता है। अब जैसे क्या होगा कि एयर यहाँ से फ्लो करके और इसके साइड इसके अंदर दिया जाएगा, और ये एयर यहाँ से जाके और सिलेंडर ब्लॉक को क्या करेगा, कूल करेगा, जिसकी वजह से ये सिलेंडर ब्लॉक की कूलिंग होती है। तो ये हम लोग फ़ैन इसके लिए ही यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस फ़ैन का यूज क्यों है। आप बोलोगे कि बाइक में भी सर पैक्ड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी बाइक होती है उसको, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर कूल्ड का यूज़ करते हैं। वाटर कूल इंजन लाइक रेडिएटर यूज़ करते हैं। आप बहुत सारे R15 वगैरह की एग्जांपल दोगे, या फिर पल्सर 200, तो इन सबों में क्या करते हैं हम लोग कूलेंट का यूज़ करते हैं। वाटर कूल्ड इंजन होता है, इसलिए वो पैक्ड रहता है और उसमें वाटर की कूलिंग करते हैं। ठीक है, बट ये इसमें कोई वाटर कूलिंग नहीं कर रहे हैं, इसमें एयर कूलिंग ही कर रहे हैं, लेकिन फोर्स कन्वेक्शन की मदद से, तो इसलिए हम लोग फ़ैन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब इसको डिसमेंटल करते हैं फ़ैन को, और आगे के प्रोसेस को समझते हैं। अब देख सकते हो ये फ़ैन मैंने निकाल दिया। ये फ़ैन क्या होता है, 3 बोल्ट के साथ, ये रोटर बोलते हैं इसको, रोटर के बैक साइड में इसको असेंबल किया जाता है। ठीक है, तो फ़ैन की एक्सप्लेनेशन कर दी मैंने। अब यहाँ पे देखो, ये देख सकते हो आप, ये रोटर होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, रोटर, और ये होता है स्टेटर। ये स्टेटर रोटर, स्टेटर मीन्स यहाँ पे कॉपर कॉइल की बाइंडिंग होती है। ठीक है, आई थिंक आप लोग अब आप लोग आई थिंक देख पा रहे होंगे, ये कॉपर कॉइल की बाइंडिंग है, जो कि स्टेशनरी फिक्स कर दी जाती है बाय द हेल्प ऑफ बोल्ट। ओके, बोल्ट की मदद से यहाँ पे स्टेशनरी इसको फिक्स कर दी जाती है, और यहाँ पे एक कॉपर कॉइल की बाइंडिंग होती है, और हम लोग एक रोटर का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो, ये इसको बोलते हैं रोटर। ये क्रैंकशाफ्ट के साथ फिक्स होता है बाय द हेल्प ऑफ पिन की, बाय द हेल्प ऑफ की
हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रैंकशाफ्ट के साथ फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, रोटर के इनसाइड एरिया में परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट, जो कि क्या होता है, अराउंड कॉपर कॉइल कंटिन्यू रोटेट करते रहता है। जब कंटिन्यू कॉपर कॉइल के अलोंग कोई मैग्नेट रोटेट करता है तो ईएमएफ इंड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि इन वायर्स के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं सीडीआई कॉल और ऑल ऑक्सिलरीज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ऑल्टरनेटर का क्या काम होता है, ऑल्टरनेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम होता है ऑल्टरनेटर का, और वो बाय द हेल्प ऑफ रोटर एंड कॉपर कॉइल की मदद से वो किया जाता है, ठीक है। तो आई होप अब ये जो ऑल्टरनेटर है वो क्या एसी करंट इंड्यूस करता है, कि कौन सा करंट, एसी करंट इंड्यूस करता है ऑल्टरनेटर। तो एसी करंट इंड्यूस कितना करता है, तो 12 वोल्ट, 12 वोल्ट और 7 एम्पियर, 12 वोल्ट एंड 7 एम्पियर इंड्यूस करता है ऑल्टरनेटर करंट एंड वोल्टेज, ओके। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटर का पार्ट है। अब ऑल्टरनेटर के नीचे आप लोग एक गियर देख पा रहे होंगे, जो कि प्लास्टिक का गियर आप लोगों को दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये गियर किस लिए यूज़ करते हैं और ये क्या है, तो इसको निकालते हैं पहले। सबसे पहले तो ये देखिए, ये होता है पंप गियर, इंजन ऑयल पंप गियर, ओके। इंजन ऑयल पंप गियर, जो कि क्या करता है, यहाँ पे इंजन ऑयल पंप लगा हुआ है, इस पंप को ड्राइव देने के लिए इस गियर का यूज़ किया जाता है। और ये ड्राइव किससे मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके साइड, नीचे के साइड, जस्ट वेट, देखो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो गियर्स दिख रहे हैं, ये गियर्स दिख रहे हैं क्या आप लोगों को, ये देखो, ये गियर्स है ना, इस गियर के साथ ही ये कनेक्ट होता है ऑयल पंप, ये यू कैन सी लाइक दैट, ओके। सो ये गियर जो होता है ना, इंजन ऑयल गियर, ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट होता है और ये क्या करता है, ये पंप को ड्राइव देता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका क्या यूजेज है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि जैसे ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, अब आप लोगों को पता है कि स्पार्क प्लग को मिनिमम कितना वो वोल्टेज चाहिए स्पार्क करने के लिए। तो आप लोगों को बता दूं कि किसी भी स्पार्क प्लग को इनसाइड द बाइक के इंजन के बारे में बात कर रहा हूं, तो मिनिमम 22,000 वोल्ट मानते हैं कि उसको स्पार्क प्लग को स्पार्क करने के लिए मिनिमम 22,000 वोल्ट चाहिए। और ऑल्टरनेटर से हमारा 12 वोल्ट जनरेट हो रहा है, तो फिर 22,000 वोल्ट में कन्वर्ट कौन करेगा। तो हम लोग यूज़ करते हैं एक इग्निशन कोयल, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है वो इग्निशन कोयल के थ्रू होते हुए स्पार्क प्लग में जाती है। तो जो इग्निशन कोयल का क्या काम है, इग्निशन कोयल के अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या करता है कि 12 वोल्ट से 22,000 वोल्ट में कन्वर्ट करके देन स्पार्क प्लग को स्पार्क देता है, ओके, जिसकी वजह से स्पार्क प्लग स्पार्क कर पाता है। और फिर एक और क्वेश्चन होगा आप लोगों के, सर ठीक है, हमने आपको बताया कि यहाँ पे प्रोसेस कितने होते हैं, 4, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, 4 प्रोसेस होते हैं। किसी भी बाइक को स्टार्ट करने के लिए इन चारों प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है, या तो वो 2 स्ट्रोक इंजन हो या 4 स्ट्रोक इंजन हो, चाहे वो स्कूटर का इंजन हो, चाहे वो स्कूटर का इंजन हो, चाहे वो बाइक का इंजन हो, ओके। अब ये 4 प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले सक्शन मीन्स एयर फ्यूल मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर आना, कंप्रेशन उसको कंप्रेस करना मीन्स दोनों वाल्व क्लोज रहना। जैसे ही कंप्रेशन कंप्लीट होता है, स्पार्क प्लग का स्पार्क करना, जैसे स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा, ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होते ही हमको पावर स्ट्रोक मिलेगी, दोनों वाल्व बंद रहेंगे और पावर स्ट्रोक मिलते ही हमको क्या होगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अब स्पार्क प्लग को कैसे पता चलेगा कि उसको स्पार्क कब करना है, स्पार्क प्लग को कैसे पता चलेगा कि उसको कब स्पार्क करना है। जब कंप्रेशन कंप्लीट हो रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि कंप्रेशन कंप्लीट होने वाला है और उसको स्पार्क करना है। तो हम लोग यूज़ करते हैं एक पल्सर कोयल। ये जो रोटर है ना, इस रोटर के आउटसाइड में एक पल्सर कोयल या फिर पिकअप कोयल बोलते हैं उसको, पल्सर कोयल या पिकअप कोयल, उसका यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, इसके आउटसाइड में यहाँ पे लगाया जाता है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटर पे एक उभरा हुआ सरफेस है,
अपर सरफेस देख सकते हो, ये क्या करते हैं, जैसे ही रोटर रोटेट करके उस पॉइंट से टच होगा, टच होते ही स्पार्क प्लग को वो स्पार्क दे देगा, क्योंकि उसको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन कंप्लीट होने वाला है। अब ये क्रैंक शाफ्ट के साथ रोटेट करता है, तो ये कैसे पता लगेगा कि इसके एक रोटेशन में, अब क्रैंक के एक रोटेशन में पिस्टन के 2 ही मूवमेंट हो पाते हैं, ठीक है। तो माना कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट करना चालू किया तो हाफ 180 डिग्री रोटेट करते ही सक्शन हुआ, फिर 180 डिग्री कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, हमको उस टाइम स्पार्क चाहिए, इसने टच कर दिया, स्पार्क मिल गया, ठीक है। लेकिन फिर 180 डिग्री पावर और फिर एग्जॉस्ट। अब एग्जॉस्ट में तो स्पार्क चाहिए नहीं, लेकिन ये एग्जॉस्ट में भी टच करता है पल्सर कॉइल से, तो इसलिए इसको ये ऑल्टरनेट वर्क करता है। एक बार स्पार्क करेगा टच करने पे, दूसरी बार नहीं करेगा। और ये नाइदर और नॉर का ऑप्शन इसमें वो वॉल्व के अंदर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये स्पार्क एक वन टाइम करता है, अनदर टाइम नहीं करता, तो ये ऑल्टरनेट का ऑप्शन होता है, जिसकी वजह से स्पार्क प्लग को आइडिया लगता है कि कब स्पार्क करना है, ठीक है। तो ये रोटर के ऊपर पल्सर कॉइल की मदद से करते हैं हम लोग। अब आप लोगों को एक फ्लो चार्ट के डायग्राम से मैं समझा पाऊंगा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। जस्ट वेट 1 मिनट। ओके, तो आप देख सकते हैं, आपको एक फ्लो चार्ट के डायग्राम से मैं बताता हूँ कि 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में कैसे डिफरेंस होता है और कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 4 स्ट्रोक, ठीक है, और यहाँ पे एक डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 स्ट्रोक, ओके, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। अब ये क्या होता है, मैंने एक सिलेंडर बना दिया, फ्लो चार्ट, ठीक है, और ये फ्लो चार्ट में देख सकते हो आप कि ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर में माना कि ये TDC है, टॉप डेड सेंटर, ये मानते हैं अपन कि BDC, बॉटम डेड सेंटर, क्योंकि पिस्टन जो होता है ना, मान ले कि बॉटम डेड सेंटर पे है, यहाँ पे ये पिस्टन है अपना, ठीक है, तो इसका टॉप ऑफ द सरफेस दैट इज कॉल्ड BDC। तो ये मान लिया कि पिस्टन है, ठीक है, और ये पिस्टन कनेक्ट है कनेक्टिंग रॉड से, जहाँ पे ये कनेक्ट है अपना क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, ये क्रैंक शाफ्ट, ठीक। अब ये TDC BDC, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनलेट वॉल्व या आउटलेट वॉल्व, ये आउटलेट वॉल्व और ये इनलेट वॉल्व, और ये सेंटर में स्पार्क प्लग, ठीक है, स्पार्क प्लग। तो अब ये प्रोसेस कौन कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे ये 4 स्ट्रोक इंजन हो चाहे 2 स्ट्रोक इंजन हो, 4 प्रोसेस कंप्लीट करने होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट सक्शन, सेकेंड वन इज कंप्रेशन, थर्ड वन इज पावर या एक्सपांसन, और फोर्थ वन इज एग्जॉस्ट, ठीक है। ये 4 प्रोसेस इन दोनों में कंप्लीट करना होता है। अब ये कैसे होगा, तो देखो 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर माना कि ये पिस्टन है, ठीक है, तो जैसे ही पिस्टन क्या होगा, अब कभी भी क्रैंक के एक कंटिन्यू पूरा टोटल 360 डिग्री रोटेशन पे पिस्टन 2 बार मूव कर जाता है। मींस अगर क्रैंक 180 डिग्री रोटेट किया, यहाँ पे देखो आप, क्रैंक 180 डिग्री जैसे रोटेट किया, पिस्टन TDC टू BDC जाना चालू, BDC टू TDC जाना चालू करेगा। ओके, आप देख सकते हो जैसे BDC टू TDC जाएगा, लेकिन हम क्या मानते हैं अभी 4 स्ट्रोक इंजन में कि हमारा पिस्टन यहाँ पे है, टॉप डेड सेंटर पे मान के चलो, ठीक है। अब ये नहीं, ये कंपलसरी नहीं है कि हमारा पिस्टन जो है वो TDC पे ही रहेगा, ये BDC पे भी रुक सकता है, बीच में भी रुक सकता है, ऊपर भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन आइडियल कंडीशन हम मान के चलते कि हमारा पिस्टन कहाँ है, टॉप डेड सेंटर पे है, ठीक है। अब जैसे ही पिस्टन क्या होगा कि फर्स्ट स्ट्रोक कंप्लीट करेगा, ऊपर से नीचे आना चालू करेगा, तो क्या होगा 180 डिग्री से जैसे ही रोटेट करेगा तो पिस्टन ऊपर से नीचे आना चालू होगा। तो क्या होगा, जैसे ऊपर से नीचे आना चालू होगा तो यहाँ से इनलेट वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा। इनलेट वाल्व ओपन होते ही क्या होगा, हमारा सक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। पिस्टन जैसे ही BDC पे आ गया, अब BDC पे आ गया, सक्शन हो गया, फिर पिस्टन क्या होगा, नीचे से अब ऊपर जाना चालू करेगा। मीन्स अब क्या होगा, दोनों वॉल बंद रहेंगे, अभी इनलेट वॉल भी बंद हो जाएगा, आउटलेट वॉल भी बंद रहेगा, और इसमें क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होगा। तो मैं सेकंड कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट, ठीक है, जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाना चालू करेगा तो ये 180 डिग्री और मूव कर जाएगा। अब ये एक रोटेशन में क्या हुआ, सक्शन और कंप्रेशन कंप्लीट हो गया, मीन्स क्रैंक का 1 रोटेशन हो गया। फिर जैसे ही क्या होगा, पिस्टन यहाँ पे टॉप पे पहुँचेगा
तब तक क्या होगा, पल्सर कॉइल की मदद से, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे पल्सर कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे पल्सर कॉइल लगा है, यहाँ पे मार्क है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये 180 डिग्री फिर यहाँ पे पहुँच गया। अब ये जैसे ही इसको टच करेगा, यहाँ पे स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा, स्पार्क करते ही क्या होगा, ब्लास्ट होगा, हमको पावर स्ट्रोक मिलेगा, फिर पिस्टन क्या होगा, ऊपर से नीचे आना चालू होगा, मीन्स TDC टू BDC। जैसे ही TDC टू BDC वापस पिस्टन आना चालू होगा तो क्या होगा, दोनों वॉल्व बंद रहेंगे और हमको पावर स्ट्रोक मिल जाएगी। पावर स्ट्रोक मिल गई। अब फिर पिस्टन जब BDC से जब एग्जॉस्ट कंप्लीट कंप्रेशन पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्या पिस्टन नीचे से ऊपर जाना चालू होगा, तो क्या होगा, हमारा आउटलेट वाल्व खुल जाएगा और जो गैसेस भरी है वो आउटलेट वाल्व की मदद से बाहर निकल जाएगी, जो कि एग्जॉस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इसकी मदद से। तो हमारा एग्जॉस्ट प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। मतलब हमारा क्या हुआ, ये 180 डिग्री और उसके बाद 180 डिग्री, मीन्स क्रैंक का यहाँ पे देख सकते हो CRNC क्रैंक कितना, टोटल 2 रिवोल्यूशन हुआ कंप्लीट। क्रैंक के 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करना पड़ा। यहाँ पे वॉल्व, एक बार इनलेट वॉल्व खुला, एक बार आउटलेट वॉल्व खुला, मीन्स कैम कितनी बार, कैम को ओनली 1 रिवोल्यूशन करना पड़ा, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन में एक बार इनलेट वॉल्व खुलेंगे, एक बार आउटलेट वॉल्व खुलेंगे, ठीक है। पिस्टन को कितनी बार मूवमेंट करना पड़ा, तो पिस्टन को 1 2 3 और 4 बार रेसिप्रोकेटिंग मोशन करना पड़ा, क्योंकि क्रैंक के एक रोटेशन में पिस्टन 2 बार मूव कर जाता है, क्योंकि प्रोसेस यहाँ पे कितने 4, इसलिए पिस्टन कितनी बार मूव किया 4। ये 4 स्ट्रोक के अंदर। और पावर स्ट्रोक कितनी मिली, 1 पावर कितनी मिली, 1 बार, ठीक है। तो ये अपना 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर था। ये पूरा फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रोसेस कैसे होता है और कैसे इंजन स्टार्ट होता है और कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब सेम टू सेम प्रोसेस अगर 2 स्ट्रोक की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम कंपेयर करना, ठीक है। यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। अब कभी भी याद रखना कि 2 स्ट्रोक के अंदर वॉल्व नहीं होते, पोर्ट होते हैं। तो पोर्ट कैसे होते हैं, तो एक ये अगर यहाँ पे पोर्ट मीन्स होल, एक यहाँ पे इनलेट पोर्ट हुआ ना, तो इसके जस्ट थोड़ा सा डाउन साइड में या क्या होगा, आउटलेट पोर्ट होगा। इनटेक पोर्ट और आउटटेक पोर्ट, इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट, और 2 पोर्ट होंगे जो आमने सामने, बिल्कुल ये ऊपर नीचे नहीं है, ये बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल सरफेस पे हैं, 2 अलग अलग सरफेस पे आमने सामने है। ये दोनों आमने सामने है, बिल्कुल दोनों अलग अलग सरफेस पे, और ये दोनों अलग सरफेस पे हैं लेकिन ऊपर और नीचे हैं। तो इन दोनों को बोलेंगे ट्रांसफर पोर्ट, और इसको बोलेंगे जो नीचे है वो आउटलेट पोर्ट और जो ऊपर है वो इनलेट पोर्ट, ठीक है, समझ में आ गया। सॉरी, जो नीचे है उसको बोलेंगे इनलेट पोर्ट, ठीक है, और जो ऊपर है उसको बोलेंगे आउटलेट पोर्ट, ठीक है। जो ऊपर है वो आउटलेट पोर्ट, जो नीचे है वो इनलेट पोर्ट। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे सेंटर में सिर्फ यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है, ऊपर जो होता है ना सिर्फ स्पार्क प्लग होता है। अब हम मानते हैं इसमें कि जो पिस्टन है ना वो आइडियली नीचे के साइड यहाँ पे मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे आइडियली पिस्टन यहाँ पे मानते हैं। अब ये फिर क्या हो गया, TDC, और ये क्या हो गया, BDC, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसमें भी 4 स्ट्रोक कौन कौन सा है, वही सेम, सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, थर्ड पावर, और 4th वन इज एग्जॉस्ट। 4 प्रोसेस कंप्लीट करने हैं 2 स्ट्रोक के अंदर ही। लेकिन अब ये देखो, यहाँ पे ये पिस्टन है, पिस्टन कनेक्ट है किससे, ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट क्या है, क्रैंक। अब जैसे इसमें क्या होता है कि क्रैंक के एक रोटेशन पे ही एक बार पावर स्ट्रोक मिलता है। वो कैसे, तो देखो यहाँ पे 2 प्रोसेस एक साथ होते हैं 2 स्ट्रोक में। कैसे, जैसे 180 डिग्री ऑफ रोटेशन क्रैंक का हुआ, माना कि 180 डिग्री रोटेशन क्रैंक का हुआ, तो क्या हुआ, पिस्टन नीचे से ऊपर जाना चालू होगा, पिस्टन नीचे से ऊपर जाना चालू होगा। अब ये कैसे, तो हम आइडियली मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले से एयर फ्यूल का मिक्सचर है। अब वो कैसे है वो अभी पता चल जाएगा। मान लो पहले एक बार कि यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर है, तो अब जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ जाना चालू करेगा तो क्या करेगा, इसको जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है पहले से उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेशन कंप्लीट। और जैसे ही ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना चालू होगा तो इस जो इनलेट पोर्ट है इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो यहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर पिस्टन के नीचे साइड में किसको बोलेंगे, क्रैंकेस भाग में आ जाएगा।
जहाँ से सक्शन स्ट्रोक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सक्शन और कंप्रेशन एक साथ हो गया, सिर्फ पिस्टन को नीचे से ऊपर जाने में, मीन्स BDC टू TDC ट्रेवल करने में। क्रैंक है सिर्फ हाफ ऑफ द रोटेशन 180 डिग्री रोटेट करने में, 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही ये टॉप पे पहुंचा, क्या हुआ, स्पार्क प्लग ने स्पार्क कर दिया। स्पार्क करते ही क्या होगा, स्पार्क प्लग जैसे ही स्पार्क करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होते ही पिस्टन फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे नीचे आएगा तो क्या होगा, पिस्टन जैसे ही नीचे आएगा तो हमको क्या होगा, पावर स्ट्रोक मिलेगा। तो पिस्टन नीचे आते ही क्या होगा, हमको पावर स्ट्रोक मिला, मीन्स पावर स्ट्रोक। अब जैसे पिस्टन नीचे आ रहा है तो पिस्टन नीचे आएगा तो जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो नीचे क्रैंकेस में भरा हुआ है वो क्या होगा, उस पर प्रेशर लगेगा तो वो ट्रांसफर पोर्ट की मदद से ये ऊपर जाके पिस्टन के टॉप पे खुल जाएंगे। माना कि पिस्टन यहाँ पे आ गया, अब जैसे ही यहाँ पे पिस्टन आया तो ट्रांसफर पोर्ट कहाँ खुल रहा है, इन दोनों को पिस्टन के ऊपर। तो जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो नीचे आया हुआ है वो प्रेशर लगने की वजह से वो ट्रांसफर पोर्ट की मदद से ये पिस्टन के ऊपर चले जाएंगे, और ये एयर फ्यूल का मिक्सर ट्रांसफर पोर्ट से ऊपर जाने की मदद से जो गैसेज हैं इसके अंदर वो क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट की मदद से बाहर निकल जाएगी। मीन्स एग्जॉस्ट प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब ये एग्जॉस्ट किसकी मदद से हुआ, तो जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है जिसको ट्रांसफर पोर्ट की मदद से पिस्टन के ऊपर जाने की वजह से हुआ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग प्रोसेस, क्योंकि ये पिस्टन की मदद से हमको एग्जॉस्ट प्रोसेस नहीं हुआ, ये एग्जॉस्ट प्रोसेस एयर फ्यूल के मिक्सचर के ऊपर आने की वजह से एग्जॉस्ट प्रोसेस हुआ, और ये पिस्टन वापस कहाँ आ गया, BDC पे आ गया। अब ये BDC पे आ गया तो जो ट्रांसपोर्ट पोर्ट की मदद से जो ऊपर एयर फ्यूल का मिक्सचर गया है वो पिस्टन के ऊपर है, और वापस पिस्टन नीचे से जब ऊपर जाएगा तो एयर फ्यूल का मिक्सचर ऑलरेडी यहाँ पे है ना, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, मान लो कि यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर अवेलेबल है, तो वो कहाँ से है, जो ट्रांसफर पोर्ट की मदद से यहाँ पे आ रखे हैं, और वापस पिस्टन ऊपर जाएगा तो फिर उसी को कंप्रेस करेगा, सक्शन होगा, तो वो साइकिल चलता रहेगा। तो ये 2 स्ट्रोक का है। मीन्स क्या होगा कि 2 स्ट्रोक में क्रैंक कितनी बार मूव किया, ओनली 1 टाइम। कैमशाफ्ट 2 स्ट्रोक में होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलती से वाइवा का क्वेश्चन है, आप बता मत देना कि कैमशाफ्ट होता है या नहीं, क्योंकि कोई भी क्या पूछता है कि क्रैंक और कैम का 4 स्ट्रोक में क्या रेशियो होता है, तो आप बताते हो कि सर 2:1, 2 बार क्रैंक घूमता है तो कैम 1 बार घूमता है। ऐसा ही पूछा जाएगा कि अगर 4 स्ट्रोक में 2:1 होता है क्रैंक और कैम का रेशियो, तो 2 स्ट्रोक में क्रैंक और कैम का रेशियो क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर कैम तो होता ही नहीं है 2 स्ट्रोक इंजन में। जबकि कितने बच्चे क्या बोलते हैं, सर 1:1 या फिर समथिंग एल्स, जबकि ऐसा कोई जवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैमशाफ्ट यूज ही नहीं होता 2 स्ट्रोक इंजन में, क्योंकि इसमें वॉल्व नहीं होते। जब वॉल्व नहीं होंगे तो रॉक आर्म नहीं होगा, टाइमिंग चेन नहीं होगा, कैमशाफ्ट नहीं होगा, और हम लोग कैमशाफ्ट का यूज ही नहीं करेंगे। इसमें पोर्ट होता है और पोर्ट को डायरेक्टली ऑपरेट करता है पिस्टन। ओके, सो क्रैंक 1 बार रोटेशन करता है, और पिस्टन कितनी बार मूव किया, तो पिस्टन 2 टाइम्स मूव करता है, और पावर कितनी बार मिलती है, तो पावर 1 बार मिलती है। मीन्स 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक के 1 रोटेशन पे ही 1 बार पावर स्ट्रोक मिल गई, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक के 2 रोटेशन में पावर 1 बार मिलती है। मीन्स 2 स्ट्रोक इंजन इज मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। तो ये समझ में आ गया। आई थिंक ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। बहुत अच्छे से समझाया, आई होप आप लोगों को बहुत प्यार से समझ में आया होगा। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो अब अपन स्कूटी के इंजन पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग पहले थे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक ऑल्टरनेटर के बारे में, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक के बारे में समझा दिया है। अब अपन चलते हैं डिसअसेंबल करते हैं किसको, क्रैंकेस को, ठीक है। क्रैंकेस को डिसअसेंबल करते हैं। ओके, सो डिसअसेंबली ऑफ द क्रैंकेस। सो आप देख सकते हैं ये रहा क्रैंकेस, ठीक है। क्रैंकेस का ये राइट हैंड क्रैंकेस, ये लेफ्ट हैंड क्रैंकेस। तो लेफ्ट हैंड क्रैंकेस में ये क्रैंकशाफ्ट को दिशा में
You can see the crankshaft. On crankshaft, this gear is used for transmit the power to the engine oil pump gear. Okay, this gear is used only for the drive the pump gear. Okay, on this whole part is called crankshaft. This part is only called crank, and this one is the connecting rod. This one is the piston. Okay, piston. On piston you can see the piston ring. You can see the 3 piston rings are used. First 2 piston ring is compression ring. Okay, else first ring is compression, second one is wiper ring, and third one is oil seal ring. So फर्स्ट 2 रिंग को कंप्रेशन रिंग भी बोल सकते हैं और लास्ट वाले को ऑयल सील रिंग भी बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट वाले को कंप्रेशन रिंग, सेकंड वाला वाइपर रिंग और थर्ड वाला ऑयल सील रिंग. तो 3 रिंग का यूज किया जाता है पिस्टन के ऊपर. पिस्टन कभी भी फिजिकली टच नहीं होता, सिलेंडर के रिंग्स होती है वही फिजिकली टच होती है सिलेंडर के. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये होती है रिंग, ठीक है ना. तो ऐसे सेम आप यहाँ पे ये रिंग देख सकते हो. यू कैन सी द रिंग. जो फर्स्ट कंप्रेशन रिंग होती है वो स्टील मटेरियल उसका होता है, जो वो स्टील का होता है. जो सेकंड वाला रिंग होता है वो कास्ट आयरन का होता है, सेकंड रिंग. ओके, एंड थर्ड वन इज ऑयल सील रिंग. सो फर्स्ट स्टील रिंग, सेकंड वन इज कास्ट आयरन, एंड थर्ड वन इज ऑयल सील रिंग. सो अब क्या करते हैं, क्रैंकशाफ्ट को डिसमेंटल करते हैं, फिर अपन आगे की बातें करते हैं. तो फर्स्टली अब आप देख सकते हो CVT प्रोसेस क्या होता है. तो ये होता है अपना कवर, ये किक शाफ्ट. यू कैन सी द किक शाफ्ट. वी आर अप्लाई द किक by the help of this shaft. This one is called kick shaft. Okay, so firstly disassemble it. ओके, तो आप देख सकते हो ये पार्ट है, ये कवर खुलते ही आप लोग देख सकते हो ये कवर है. इसके अंदर देखो किक शाफ्ट, जैसे हम लोग किक अप्लाई करते हैं तो ये आप इस प्रोसेस को देखो. किक अप्लाई करते हैं क्या होता है, किक गियर जो होता है, ये किक गियर ऊपर के साइड आता है और ये टच होता है. और इस ये जो गियर होता है ना, ये चक नट यहाँ पे यूज़ कर रहा है. चक नट के साथ अटैच होता है. अब कैसे वर्क करता है ये आपको बताऊँगा. इस प्रोसेस को CVT प्रोसेस करते हैं. CVT प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन. CVT ये एक प्रोसेस है जो कि क्या होता है, क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कंटिन्यू वेरी करता रहता है. स्कूटी के अंदर कोई फिक्स गियर नहीं होता है जिससे हम गियर अप्लाई करके बोले कि इसकी स्पीड लिमिट इतनी है. इसमें जितना ज़्यादा हम एक्सेलरेट करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड को ऑब्टेन करेंगे. जितना कम स्पीड करेंगे, जितना कम एक्सेलरेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कम स्पीड होगा और टॉर्क ज़्यादा ऑब्टेन होगा. तो ये किसकी मदद से होता है और वो कैसे होता है वही देख रहे हैं यहाँ पे. तो आप देख सकते हो ये पार्ट ये क्रैंक से कनेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो आप पिस्टन, यहाँ पे आप पिस्टन को देख सकते हो और पिस्टन कनेक्ट है. यू कैन सी द पिस्टन. ओके, सो पिस्टन इज कनेक्टेड विथ क्रैंक शाफ्ट by the help of connecting rod. So ये
क्रैंक का पार्ट है, तो सो इसको इंजन से पावर आ रही है तो इसको बोलते हैं इंजन वेरिएटर, और इसको बोलते हैं क्लच वेरिएटर। इस होल पार्ट को इंजन वेरिएटर, इस होल पार्ट को क्लच वेरिएटर। अब बाय द हेल्प ऑफ बेल्ट की मदद से हम लोग इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर पाए हैं और पावर को ट्रांसमिट करते हैं। किसकी मदद से? बेल्ट की मदद से। तो पहले एक एक पार्ट के नाम को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके वर्किंग बताएंगे, फिर ये कैसे वर्क करते हैं ये बताना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको बोल देंगे वैंडेक्स। क्या बोलेंगे? वैंडेक्स। ये देखो ये कैसे मूव करता है, ये आप देख सकते हैं। ये इस पार्ट में अगर हम कनेक्ट कर दें सेल्फ स्टार्टर मोटर को, और ये रोटेट करने पर ये क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी करता है, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, और ये रोटरी मोशन भी करता है। ठीक है, तो ये वैंडेक्स मोटर होता है। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये नट लगा हुआ है। नट को खोलेंगे, नट को खोलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चक नट है। चक नट के ऊपर तित, यहाँ पे तित बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे तित। ये तित क्या होते हैं? इस क्रैंक शाफ्ट के साथ फिक्स करने के लिए इस तित को बनाया गया है। और ये चकनट का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि जो किक शाफ्ट होता है ना, किक शाफ्ट में जो किक गियर होते हैं उस पर भी चकनट जैसा सेम असेंबली है, और ये क्या 1 वे गियर का काम करता है। ये सेम इस पर अटैच होते हैं, और जैसे हम किक लगाएंगे ये क्रैंक को रोटेट कर देगा, क्योंकि क्रैंक के साथ ये चकनट फिक्स होता है। तो क्रैंक को रोटेट कर देगा, और जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो पावर अनदर साइड से आएगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से क्या होगा? इसमें ये फ्री हो जाएगा किक शाफ्ट के साथ। ठीक है, तो ये 1 वे गियर का काम करता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इंजन वेरिएटर के एक एक पार्ट को डिसअसेंबल कर रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो डायमीटर है ये सबसे कम है, जबकि यहाँ पे डायमीटर आप देख सकते हो सबसे लार्जर होगा। मीन्स ये आउटपुट शाफ्ट, ये इनपुट शाफ्ट बोल सकते हैं। तो ऑन आउटपुट शाफ्ट लार्जर डायमीटर ऑब्टेन मीन्स वी गेट द मोर टॉर्क। मीन्स स्टार्टिंग कंडीशन में हम जब स्कूटी में क्या होता है कि स्टार्टिंग कंडीशन में हम ज़्यादा लोड देते हैं तो क्या धीरे चलाते हैं, तो हमको क्या होता है? ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है। मीन्स क्या होता है? देखो स्टार्टिंग कंडीशन ये टॉर्क ज़्यादा कैसे मिलता है? बाइक में भी आप देख लो, जो आउटपुट गियर शाफ्ट होता है उसका फर्स्ट गियर सबसे बड़ा गियर होता है। क्यों? क्योंकि उसको गियर क्या होता है? टॉर्क की ज़रूरत होती है। तो टॉर्क मीन्स क्या होता है? लोड कैपेसिटी। ठीक है, तो वो आउटपुट पे लार्जर गियर और इनपुट पे स्मॉलर गियर और स्मॉलर डायमीटर। जबकि हमको जैसे ही जैसे आरपीएम की ऑब्टेन करना पड़ता है, आरपीएम ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं? इनपुट गियर शाफ्ट पे क्या करेंगे? हम डायमीटर को इंक्रीज करेंगे और आउटपुट पे डिक्रीज करेंगे। मीन्स रेशियो को क्या करेंगे? सेम रेशियो में लाएंगे। अभी रेशियो देखो यहाँ पे, इसके डायमीटर और इसके डायमीटर का रेशियो क्या है? काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन जैसे ही हम स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? रेशियो इसका डिक्रीज करेंगे, इसका इंक्रीज करेंगे, और अप्रॉक्स सेम रेशियो में ले जाएंगे, जिसकी वजह से हमको आरपीएम ऑब्टेन होगा। अब ये कैसे होता है? क्योंकि हम स्कूटी में ना ही क्लच यूज़ करते हैं ना ही गियर यूज़ करते हैं, तो ये कैसे वर्क करता है तो ये हमको देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका बोल्ट भी खोला। ये होता है अपना क्लच वेरिएटर। क्लच वेरिएटर में इस पार्ट को बोलते हैं ड्रम। आप देख सकते हैं इस पार्ट को बोलते हैं ड्रम। ठीक है, ड्रम। और ये होता है अपन फैन। ये यहाँ पे फैन भी यूज़ किया हुआ है। अब ये फैन का क्या काम है? क्योंकि इधर बेल्ट यूज़ किया गया है, और बेल्ट में हम ऑयल का लुब्रिकेशन नहीं कर सकते, नहीं तो स्लिप हो जाएगा। इसकी वजह से हम इधर एयर कूल्ड करते हैं, और एयर कूल्ड के लिए हम यहाँ पे भी फैन का यूज़ किया है, क्योंकि फोर्स्ड कन्वेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये वर्क करता है एज लाइक सीजर गियर। यहाँ पे ये जो तित बने हुए हैं ना, ये सेल्फ स्टार्टर मोटर सेल्फ स्टार्ट करने के लिए ये तित बना हुआ है। ठीक है, तो अभी ये कैसे वर्क करता है आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये पार्ट के एक्सप्लेन देख लो। ये पार्ट इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसमें हम लोगों को लगता है कि क्लच यूज नहीं किया जाता, बट इसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्लच यूज करते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है? तो ये देखो, इसमें क्या होता है? ये शू यूज किया जाता है क्लच पैड। देखो ये क्या होता है? ये बाहर की तरफ बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बाहर की तरफ एक्सपेंड होते हैं। अब इसमें देखिए अंदर के साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे ये अंदर के साइड दिख रहा हो तो ये स्प्रिंग का यूज़ किया गया है। अब ये क्या प्लेट जो है ये टैपर्ड प्लेट है। आप देख सकते हैं ये दोनों प्लेट क्या है? टैपर्ड है। और ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये अंदर की तरफ प्रेस भी होता है। देखो अब देखिए, और है प्रेस मीन्स ये दबता है। तो ये कैसे? तो ये देखिए इसमें बेल्ट लगा हुआ है। अब ये लार्जर डायमीटर है, बिल्कुल ऊपर है। जैसे हम बेल्ट प्रेस कर रहे हैं, अब देखिए बेल्ट अंदर की साइड जा रही है धीरे धीरे। देखिए बेल्ट कहाँ चली गई? बेल्ट बिल्कुल अंदर, मीन्स डायमीटर क्या हो गया? डिक्रीज। यू कैन सी डिक्रीज द डायमीटर। ओके, एंड जैसे मैंने धीरे धीरे छोड़ूंगा, देखो इंक्रीज द डायमीटर। ओके, डायमीटर इंक्रीज हो गया।
स्टार्टिंग कंडीशन ये ऐसे रहता है। और जैसे बेल्ट को मीन्स क्या होता है, ये इसमें जो स्प्रिंग लगा है, जैसे हम बेल्ट को खींचेंगे तो ये दबेगा, जिसकी वजह से डायमीटर इधर डिक्रीज होगा। फिर जैसे ही लूज करेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग अपने इनिशियल पोजीशन पे जाने की वजह से क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से बेल्ट का डायमीटर इंक्रीज होगा। अब ये कैसे, इसका ऐसे वर्किंग क्यों दिया गया है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच यूज़ किया जाता है। अब ये जो क्लच है ना, ये मान लो इनपुट गियर शाफ्ट या आउटपुट गियर शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट के साथ क्या होता है, फ्री होता है। आप देख सकते हो ये क्लच घूम रहा है लेकिन शाफ्ट नहीं घूम रहा। आप देख सकते हो ये मैंने शाफ्ट को पकड़ रखा है, क्लच मूव कर रहा है। मीन्स क्या होता है कि ये क्लच का इनर हाउसिंग पार्ट है और ये क्लच का आउटर हाउसिंग पार्ट मान सकते हो। ये क्लच का इनर हाउसिंग पार्ट या आउटर हाउसिंग पार्ट, तो जो इनर हाउसिंग पार्ट है क्लच का वो शाफ्ट के साथ कनेक्ट नहीं होता, ये फ्री रहता है। जबकि ये जो है, अब देखो ये जो इसमें तीथ बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इनसाइड ये तीथ बने हुए हैं, ये क्या क्लच का आउटर हाउसिंग पार्ट होता है जिसको ड्रम बोलते हैं। ये शाफ्ट के साथ फिक्स होता है। अब देखो क्लच को घुमाओगे तो क्लच के इनर हाउसिंग घूम रही है, लेकिन हमारा जो क्या है, क्लच का आउटर हाउसिंग नहीं घूम रहा। मीन्स ये ड्रम नहीं घूम रहा क्योंकि ये ड्रम इस शाफ्ट के साथ, ये इस इनर हाउसिंग के साथ फ्री रहता है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, क्लच का आउटर हाउसिंग घुमाया, क्लच का आउटर हाउसिंग घुमाया ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा शाफ्ट अंदर के साथ शाफ्ट घूम रहा है, लेकिन ये इनर हाउसिंग नहीं घूम रहा। आप देख सकते हो, ये देखो देखो दिख रहा है, देखो आप लोग देखो इधर साइड देखो यहाँ पे। मीन्स क्या होता है कि ये शाफ्ट के साथ कौन कनेक्ट होता है, आउटर हाउसिंग, ठीक है। तो आउटर हाउसिंग शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है, जबकि ये आउटर, अब पावर कैसे ट्रांसमिट होती है आपको ये देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसके भी पार्ट्स देख सकते हो, ये इंजन वेरिएटर का ही पार्ट्स है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्लीव, इसको बोलते हैं स्लीव। और ये भी टैपर्ड प्लेट है, और इंजन वेरिएटर में ये भी टैपर्ड प्लेट है। ये दोनों ऐसे कनेक्ट होते हैं और इसके बीच में बेल्ट होता है, ठीक है। अब इसके बैक साइड में आप देख सकते हो हम लोग रोलर का यूज करते हैं, देख रहे हो ये रोलर का, ऐसे रोलर लगे हुए हैं और ये 6 रोलर का यूज होता है, रोलर इसको बोलते हैं रोलर। अब ये रोलर इसके साइड अंदर के साइड लगे हुए होते हैं ऐसे, ठीक है, ये रोलर ऐसे लगे हुए हैं। अब ये रोलर लगे हुए हैं तो रोलर का क्या काम है, तो अब वर्किंग समझेंगे। अभी तक पार्ट्स के नाम एक्सप्लेन कर रहा था, अब इसकी वर्किंग समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। अब जैसे हम क्या करते हैं कि स्कूटी को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, स्कूटी आगे तो नहीं बढ़ती, स्टार्ट करने के बाद स्कूटी क्या होती है, रुकती है, ठीक है। स्टार्ट मीन्स इंजन सिर्फ स्टार्ट होता है, व्हील आगे नहीं बढ़ता। मीन्स क्या कंडीशन होता है, इंजन स्टार्ट होते ही हमारा पिस्टन मूव करता है, पिस्टन मूव करते ही मतलब हमारा क्रैंक तो क्या होता है, रोटेट होता है, ये क्रैंक रोटेशन होता है। अब क्रैंक में क्या लगा हुआ रहता है, तो ये हमारा प्लेट, ठीक है, ये ऐसे रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर ये स्लीव, अब देखो स्लीव का जो ये एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है ना, इसके ऊपर बेल्ट लगा रहता है, और बेल्ट के साथ ही ये अपना क्लच का आउटर, ये इनर हाउसिंग, ये ऐसे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पार्ट इसके ऊपर ऐसे कनेक्ट रहता है सेम। अब जैसे ही क्या हो गया, पावर हमारा यहाँ से आया इंजन से, क्रैंक रोटेट किया, क्रैंक रोटेट करते हैं क्या, जब ये इसके साथ फिक्स है तो बेल्ट, ये जैसे इंजन वेरिएटर रोटेट करेगा तो बेल्ट रोटेट करेगा, बेल्ट रोटेट करते ही बेल्ट किससे कनेक्ट है, इनर हाउसिंग से, तो इनर हाउसिंग रोटेट करेगा, इनर हाउसिंग जैसे रोटेट करेगा, लेकिन हमारा इनर हाउसिंग से शाफ्ट तो क्या है, फ्री है, तो शाफ्ट तो रोटेट करेगा नहीं। हमारा ड्रम भी फ्री है, ड्रम इसके ऊपर लगा रखा है, तो ड्रम क्या है, फ्री है। अब ये शाफ्ट देखो, यहाँ पे देखो ये बेल्ट रोटेट कर रहा है, लेकिन शाफ्ट रोटेट कर रहा है क्या, नहीं। ये ड्रम रोटेट कर रहा है क्या, नहीं। मीन्स क्या होगा, हमारा पावर इनर हाउसिंग तक ही जाती है। मीन्स इंजन स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन ये इंजन वेरिएटर रोटेट कर रहा है, बेल्ट रोटेट कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा आउटर हाउसिंग क्लच का रोटेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से शाफ्ट रोटेट नहीं कर, और जैसे शाफ्ट रोटेट नहीं करेगा तो हमारा पावर आउटपुट शाफ्ट में नहीं जाएगा और व्हील तक पावर नहीं जाएगी। इसकी वजह से इंजन स्टार्ट तो रहता है, लेकिन हमारा इंजन व्हील क्या होता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अब आगे कैसे बढ़ती है, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं तो स्कूटी आगे बढ़ चलती है। ज़्यादा एक्सेलरेट करने का मतलब होता है कि हमें एयर फ्यूल के रेशियो को इंक्रीज़ करना। तो एयर फ्यूल के रेशियो को जैसे ही हमने इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ, एयर फ्यूल के रेशियो को इंक्रीज़ करने ही ब्लास्ट ज़्यादा हुआ, ज़्यादा तेज़ी से पिस्टन मूव करने लगे, क्रैंक के रोटेशन में तेज़ी आ गई, मीन्स स्पीड बढ़ गया। क्रैंक रोटेशन जैसे स्पीड बढ़ा, बेल्ट की स्पीड बढ़ गई, बेल्ट की स्पीड जैसे ही बढ़ी तो ये जैसे ही इनर हाउसिंग, क्लच की इनर हाउसिंग की स्पीड, रोटेट करने की स्पीड बढ़ गई। अब जैसे ही रोटेट करने की स्पीड बढ़ी तो इसके ऊपर जो ये क्लच के शू लगे हुए हैं ना, ये क्या होंगे, ये बाहर के साइड ऐसे एक्सपेंड होंगे, ये बाहर के साइड ये ऐसे दिख रहा है आपको,
आप देख पा रहे होगे, ये देखो ये ऐसे एक्सपेंड होंगे, और जैसे ये बाहर की साइड एक्सपेंड होंगे ना, तो ये ड्रम के अंदर के साइड क्या होंगे, जाके चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से ड्रम को क्या कर देंगे, इंगेज कर देंगे, फिक्स कर देंगे इनर हाउसिंग के साथ, जिसकी वजह से पावर कहाँ ट्रांसमिट होने लग जाएगा, इस शाफ्ट में, और शाफ्ट के थ्रू अपने व्हील में, जिसकी वजह से स्कूटी आगे बढ़ पड़ती है। तो ये होता है नॉर्मल कंडीशन जब हम स्कूटी आगे चलती है, जब हम ज़्यादा एक्सेलरेट। अब हम बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल थोड़ा सा एक्सेलरेट किया जिसकी वजह से स्कूटी आगे बढ़ रही है, लेकिन हमको आरपीएम चाहिए, आरपीएम मीन्स स्पीड चाहिए बहुत ज़्यादा, तो वो कैसे होता है, तो हमने और ज़्यादा एक्सेलरेट किया तो और स्पीड मिल जाती है। और ज़्यादा एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है कि हमारा एयर फ्यूल को मिक्सचर के रेशियो को और बढ़ा दिया। जैसे हमने एयर फ्यूल के मिक्सचर के रेशियो को और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ये तो अब शाफ्ट इसके साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एनी टाइम कनेक्ट है, जिसकी वजह से पावर ट्रांसमिट हो रही है। लेकिन साथ साथ क्या होगा ना, तो अब इसके अंदर जो रोलर थे ना, इसके अंदर जो रोलर थे ना, वो क्या होंगे, रोलर जो होंगे ना, वो रोलर क्या होंगे, बाहर के साइड, ये बाहर के साइड ऐसे एक्सपेंड होना चालू होंगे, बाहर के साइड, ये पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो जाएंगे बाहर के साइड। अब ये पार्ट जो है ये नीचे के साइड, ये बॉडी के साथ कनेक्ट है, तो ये तो पीछे जाएगा नहीं, ये तो पीछे जाएगा नहीं, बाहर के साइड एक्सपेंड होंगे। और ये पार्ट आगे के साइड बोल्ट के नट के साथ फिक्स है, तो ये भी पार्ट आगे आएगा नहीं। बीच में बेल्ट है इसके ऊपर क्या है, ऐसे बेल्ट है। तो अब ये टेपर्ड प्लेट है, तो ये ऐसे लगा हुआ है, इसके बीच में जो गैप है देखो, ये ऐसे लगा हुआ है, अब इसके बीच में गैप है, तो यहाँ पे बेल्ट है। अब जैसे ये जब ये पार्ट पीछे नहीं जाएगा तो ये आगे के साइड ऐसे आएंगे, और ये जैसे ही आगे ऐसे बढ़ेगा ना, तो क्या होगा, इस बेल्ट को अपने साइड इधर के साइड खींचेगा, डायमीटर इंक्रीज करेगा। अब ये इधर खींचेगा तो क्या होगा, इधर स्प्रिंग प्रेस होगा, इधर स्प्रिंग प्रेस होते ही इधर का क्या होगा, डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा, इधर का डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, और इधर का डायमीटर इंक्रीज होते ही क्या होगा, हमको आरपीएम मिलने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में स्पीड आ जाएगी। जैसे ही फिर हम एक्सेलरेट कम करेंगे तो क्या होगा, इधर का स्प्रिंग वापस इनिशियल पोजीशन पे जाया जाएगा, फोर्स लगाएगा, तो इधर का डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, इधर का डायमीटर वापस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रोलर अंदर की साइड आ जाएंगे, और हमारा क्या होगा, वापस स्पीड कम हो जाएगा और टॉर्क ज़्यादा मिलने लगेगा। तो ये प्रोसेस होता है, ये पूरा स्पीड बढ़ने का, व्हीकल को आगे बढ़ने का, स्कूटी के टायर को मूव करने का, और इनिशियल कंडीशन, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सीवीटी प्रोसेस। तो आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि स्कूटी में बाइक से बिल्कुल सिर्फ यही डिफरेंस पार्ट होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अब आई होप कि आप लोगों को एक भी डाउट नहीं होगा, आप लोग इससे क्लियर होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट आता भी है ना, तो आप लोग ग्रुप में डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज या फिर ग्रुप में पूछ सकते हो, या फिर किसी से भी बाबा ऑटोमोबाइल के बाबा ऑटोमोबाइल के एम्प्लॉय से कांटेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर साइट वगैरह पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब करते हैं कि ये सेल्फ स्टार्ट मोटर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले बात कि सेल्फ स्टार्टर मोटर, ये आपने किक से देख लिया, किक से कैसे स्टार्ट होता है। अब सेल्फ स्टार्टर मोटर कैसे स्टार्ट होता है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो रोलर लगा रहा हूँ मैं, देखो ये पार्ट ऐसे कनेक्ट रहता है। अब यहाँ पे अपना वेंडेक्स है, ये वेंडेक्स है, ये जैसे ही रोटेट होगा तो ये क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो ये ऊपर की साइड मूव करके और कनेक्ट हो रहा है। ये पार्ट यहाँ पे कनेक्ट रहता है ऐसे, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये अभी क्या है कि इस सीजर गियर के साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर आएगा, ये ऊपर के साइड ये मूव करेगा, ये ऐसे क्या होगा कि इस गियर के साथ मूव करेगा, और ये ऊपर के साइड आके और देखो ये कैसे कनेक्ट हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैसे कनेक्ट हो रखा है, ठीक है। पहले अभी स्टार्टिंग कंडीशन इसका क्या होता है कि देखो स्टार्टिंग कंडीशन ये है, कनेक्ट नहीं है, ये नीचे के साइड है, ये ऊपर की साइड है। जैसे हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर, अब सेल्फ स्टार्टर मोटर कहाँ है, ये रहा सेल्फ स्टार्टर मोटर। अब देख सकते हो
ये अपना सेल्फ स्टार्टर मोटर। ये कहाँ कनेक्ट होगा, तो ये यहाँ पे बैक साइड ऑफ द इंजन, यहाँ पे देखो। अब मैंने कनेक्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पे ये देखिए, अब ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट होता है, देखो। देख सकते हो यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर मोटर कनेक्ट हो गया। और ये यहाँ से सेल्फ स्टार्टर मोटर क्या होता है, इस वेंडेक्स के इस गियर को रोटेट कराता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल्फ स्टार्टर मोटर, जैसे ही सेल्फ का स्विच ऑन करेंगे सेल्फ स्टार्टर मोटर इसको रोटेट करेगा। इसको रोटेट करते ये क्या होगा, देखो ये कैसे इसको रोटेट करेगा सेल्फ स्टार्टर, और रोटेट होते ये देखिए ऊपर की तरफ मूव करेगा, इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होते इसको रोटेट कराएगा। और ये पार्ट क्रैंक के साथ फिक्स है, क्रैंक फिक्स है मीन्स क्रैंक रोटेट कर जाएगी, क्रैंक रोटेट करते हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है सेल्फ स्टार्ट करने का। जबकि अपन किक से कैसे स्टार्ट करते हैं, तो किक से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए ये किक शाफ्ट लगा हुआ है। किक शाफ्ट जैसे ही अप्लाई किया तो क्या होगा, ये जो है ना वन वे गियर, ये अपने चकनट के साथ यहाँ पे कनेक्ट होती है, एनी टाइम कनेक्ट रहती है। जैसे किक लगाया है, ये क्या करेगा, एक साइड में रोटेट होगा, अनदर साइड फ्री रहता है, तो ये रोटेट करेगा, क्रैंक को घुमा देगा, जिसकी वजह से क्रैंक मूव करेगी, पिस्टन मूव करेगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है किक से स्टार्ट करने का। जबकि धक्का दे के कभी भी स्कूटी को स्टार्ट नहीं कर सकते। आप लोगों के माइंड में भी होगा कि सर बाइक को धक्का दे के स्टार्ट करते, स्कूटी को कभी धक्का दे के स्टार्ट कर सकते हैं क्या? तो कभी भी स्कूटी को धक्का दे के स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी बता दूंगा उसका भी प्रोसेस क्या है। तो अब स्कूटी में आप लोगों का ये CVT प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब लास्ट पार्ट आप लोग आ जाइए स्कूटी के गियर बॉक्स पे। ये होता है अपना स्कूटी का गियर बॉक्स। हम लोग बोलते हैं ना कि गियर नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, बिना गियर्स के कभी भी हमको टॉर्क कैसे ऑब्टेन होगा, टॉर्क इन द सेंस लोड कैपेसिटी कैसे मिलेगी? तो इस चीज़ को जानने के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये क्या होता है, यहाँ पे व्हील कनेक्ट होता है, ये ड्रम है अपना, ये व्हील डायरेक्टली कनेक्ट होता है। स्कूटी में क्या होता है, डायरेक्टली व्हील कनेक्ट होता है इंजन से। तो ये ड्रम है, ड्रम में ये ड्रम जैसे निकालेंगे हम, ये देखिए, तो ये क्या है अपना ब्रेक शू, ये ब्रेक शू, ये ब्रेक है अपना ब्रेक, तो ये ब्रेक निकाल दिया, ठीक है। अब ब्रेक शू में ये अपना गियर बॉक्स है, तो ये कैसे निकालें, तो यहाँ पे इसको डिसमेंटल करते हैं, अब देख सकते हो ये अपना गियर बॉक्स, ठीक है, ये गियर बॉक्स, ये स्कूटी का गियर बॉक्स है, ठीक है। देखो कैसे लगता है, यहाँ पे अपना होता है ये इनपुट गियर शाफ्ट,
तो आप देख सकते हैं ये रहा, ये इनपुट गियर शाफ्ट है अपना। देखो यहाँ से पावर आ रही थी उधर से इंजन से, ठीक है, यहाँ से इंजन से पावर आ रही थी, अभी आपने देखा था। देखो यहाँ से इंजन से पावर आई, लेकिन यहाँ पे गियर बॉक्स अवेलेबल है। देखो ये अपना आउटपुट गियर शाफ्ट जिसमें व्हील डायरेक्टली कनेक्ट होता है, व्हील यहाँ पे इसके थ्रू, ठीक है। तो ये आउटपुट गियर शाफ्ट और ये होता है अपना कंपाउंड गियर शाफ्ट। तो ये इसको बोलते हैं गियर बॉक्स। अब हम बोलते हैं इंजन स्कूटी में कि गियर तो यूज़ करते ही नहीं, फिर ये कहाँ से गियर्स आ गए? तो इन गियर्स का यूज़ क्यों है? तो इन गियर्स का यूज़ सिर्फ हम लोग क्यों करते हैं? टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि क्या है कि अगर यहाँ से पावर आ रही है और यहाँ पे डायरेक्टली हम व्हील लगा दिए तो हमारी क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली व्हील लगता है स्कूटी में। सबसे पहले बाइक में क्या होता था कि हम किसी भी व्हील के बाद चैन स्प्रॉकेट यूज़ करते हैं सबसे लास्ट में, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमको टॉर्क ऑब्टेन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे टॉर्क कैसे मिलेगा? यहाँ पे तो हम डायरेक्टली व्हील लगा रहे हैं, यहाँ पे तो स्प्रॉकेट का यूज़ कर नहीं रहे हैं। और जब स्प्रॉकेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम जब तक गियर रेशियो इंक्रीज नहीं करेंगे, टॉर्क नहीं मिलेगा, तो लोड कैपेसिटी नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो पावर आ रही है इसको क्या करेंगे हम लोग, स्मॉलर गियर से लार्जर डायमीटर ऑफ द गियर में चेंज करेंगे, मीन्स गियर रेशियो इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से हमको टॉर्क ऑब्टेन होगा। ये कैसे होंगे? तो ये बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड गियर शाफ्ट, इसको बोलेंगे कंपाउंड गियर शाफ्ट। ये इनपुट गियर शाफ्ट। अब इनपुट गियर शाफ्ट के साथ क्या कनेक्ट है? देखो ये कंपाउंड गियर शाफ्ट कैसे, ये ऐसे कनेक्ट है, और उसके बाद हमारा आउटपुट गियर शाफ्ट जो कि इसके साथ ये ऐसे कनेक्ट है। अब हमारा क्या होगा, पावर यहाँ से इन होगा, पावर यहाँ से इन हुआ, इसके थ्रू कहाँ गया? इस कंपाउंड गियर में, कंपाउंड गियर के थ्रू नीचे के साइड जो गियर है उसके थ्रू ये लार्जर गियर में, और ये आउटपुट गियर शाफ्ट है जिसके थ्रू यहाँ से पावर आउटपुट हुआ, और इसके थ्रू यहाँ पे व्हील में, यहाँ पे ब्रेक शू लगा रहता है, ब्रेक शू के थ्रू व्हील। तो ये हम लोग क्यों गियर का यूज़ करते हैं? तो गियर का यूज़ सिर्फ टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए हम लोग गियर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया गियर बॉक्स का यूज़ क्यों है। अब हम बोलते हैं कि स्कूटी को धक्का दे के स्टार्ट कर सकते नहीं, तो देखो धक्का देंगे तो क्या होगा, टायर घूमेगी, टायर से क्या होगा, आउटपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट से कंपाउंड गियर, कंपाउंड गियर से इनपुट गियर शाफ्ट। अब इनपुट गियर शाफ्ट घूमेगी तो इनपुट गियर शाफ्ट में फिक्स कौन है? ओनली ड्रम। क्लच तो फिक्स हमारा होता नहीं है, तो जब सिर्फ ड्रम घूमेगी इसके ऊपर, ड्रम घूमने से कभी ये इनर हाउसिंग घूमेगी क्या? जब तक इनर हाउसिंग घूमे नहीं, बेल्ट नहीं घूमेगा, बेल्ट नहीं घूमेगा तो हमारा इंजन वेरिएटर नहीं घूमेगा, तो इंजन तो क्रैंकशाफ्ट तो घूम ही नहीं सकता, जिसकी वजह से कभी भी स्कूटी धक्का दे के स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कंक्लूजन है इसका। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, कभी भी आप सर्विस कराने जाएंगे तो सर्विस में इंजन ऑयल जो डालते हैं ना, वो 2 पार्ट में डालते हैं। लगभग 80% इंजन ऑयल जो है वो हम इंजन ऑयल कहाँ डालते हैं? अपने यहाँ पे जो इंजन ऑयल होता है वो क्रैंक के पास, जो कि पंप जहाँ पे लगा हुआ है, और 25% जो 75% तो इसमें फिल करते हैं, 25% गियर बॉक्स के लिए अलग से फिल किया जाता है, ताकि क्योंकि गियर्स हैं इसमें भी तो फ्रिक्शन जनरेट होंगे, तो इसको फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंजन ऑयल फिल करते हैं। तो 25% इंजन ऑयल गियर बॉक्स में डालते हैं, जबकि 75% इंजन ऑयल कहाँ डालते हैं? अपने डीप स्टिक वॉल्व की मदद से। यहाँ पे इसको बोलते हैं डीप स्टिक वॉल्व, हमेशा जिससे हम लोग ऑयल चेक करते हैं ना, इसको ऑयल गेज या डीप स्टिक वॉल्व बोलते हैं। तो इससे हम लोग 75% इंजन ऑयल यहाँ पे फिल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 75% इंजन ऑयल इसके अंदर फिल होता है। सो ये पूरे इंजन हम लोगों ने जो अभी तक किया, स्कूटी के इंजन को पूरा डिसअसेंबल कर दिया, एक एक पार्ट के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। तो डिसअसेंबली देख लिया आपने, एक एक पार्ट को देख लिया, उसकी वर्किंग देख ली, आपको आई होप समझ में आ गया हो। और अब अपन क्या करेंगे, इसको असेंबल करेंगे, पूरे इंजन को पैक करेंगे, असेंबल करेंगे, और उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कभी भी मैसेज कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन असेंबल करते हैं किसको, गियर बॉक्स को, ठीक है। तो ये देखिए गियर बॉक्स को असेंबल कर रहे हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि हमने इनपुट गियर शाफ्ट को लगा दिया, कंपाउंड गियर को लगा दिया, अभी आउटपुट गियर शाफ्ट तीनों लगा दिया। अब इसको पैक करते हैं। यहाँ पे ब्रेक शू आप देख सकते हैं, ब्रेक शू है। ब्रेक शू अटैच हो चुका है। अब इसमें अपना ड्रम लगा देंगे, ये व्हील ड्रम, ठीक। और यहाँ से बोल्ट से टाइट कर देंगे। ये अपना गियर बॉक्स असेंबल हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन असेंबल, तो सबसे पहले अब इधर के साइड अपन CVT इसको कंप्लीट करते हैं। जो बोल्ट गिरा था
उल्टा ही आप लोग देख सकते हैं। तो फिर ये पूरा कंप्लीट इंजन पैक हो चुका है, ठीक है। अभी आपको स्टार्टिंग से डिसअसेंबल करके दिखाया, फिर ये असेंबल करके दिखा दिया और सारे पार्ट के एक्सप्लेन। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कभी भी तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कैसे भी बाबा ऑटोमोबाइल के किसी भी एम्प्लॉय से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट इंजन पैक होने वाली है, बस कुछ पार्ट्स और बाकी रह गए हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे असेंबली कैसे होती है। डिसअसेंबली आपने पूरी कंप्लीट एक्टिवा इंजन की देख ली है, ठीक है। और इसके बारे में बताओ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इस पार्ट के बारे में लास्ट में बताऊंगा। तो ये होता है ब्लो बाई गैसेज, जो क्या होता है कभी भी इंजन रनिंग में है तो इंजन ऑयल जो कंटिन्यू रोटेट हो रहे हैं तो वो गर्म होंगे, गर्म होने के बाद वो क्या होते हैं वेपर में कन्वर्ट होते हैं, तो फ्यूम्स बनते हैं उनके। तो वो या फिर कंप्रेशन में जो गैसेज लीक होती है तो वो इंजन जो होती है अंदर जो होती है ना उसको बाहर निकालना होता है। तो वो बाहर निकालने के लिए वो जो टाइमिंग चेन के थ्रू गैसेज ऊपर आ जाती है और उसको इस ब्लो बाई गैसेज से बाहर निकल के वापस एयर फिल्टर में भेजा जाता है। तो ये होता है उनका प्रोसेस। ये जो देखिए एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर के कनेक्ट करेंगे कहाँ पे, इंटेक मैनिफोल्ड पे। हमारा कंप्लीट इंजन रेडी हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सारे पार्ट्स इसमें असेंबल कर दिए मैंने। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को पूरे इंजन कंप्लीट एक्टिवा होंडा एक्टिवा करा रखा है मैंने, जिसमें
हर एक चीज़ को बहुत ब्रीफली और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की, बहुत ही प्यार से समझाया, एक एक पार्ट्स के नाम, उसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे होते हैं वो वर्क, कैसे होते हैं, सीवीटी प्रोसेस क्या होता है, पूरी चीज़ बहुत प्यार से समझाया, बहुत ईजी वे में लेके गया, जितना ज़्यादा समझा पाया और बहुत ईजी लैंग्वेज में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना इस वीडियो को वॉच करने के लिए। और अगर कोई डाउट हो तो कभी भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर बाबा ऑटोमोबाइल से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो बिल्कुल बेहिचक आप लोगों को कांटेक्ट करना है। थैंक यू सो मच।